morning to one and all. I, on behalf of Department of Higher and Technical Education, Government of Gujarat, welcome annual student startup meet is organized by Gujarat Government, Startup India, Elias Technomedia, and all other knowledge partners. It's a privilege to have the distinguished galaxy of leaders today present to appreciate the innovators and startups who are young minds who are contributing significantly to Honorable Prime Minister's call of Make in India, New India, and Atmanirbhar Bharat. This program has been a flagship program to harness creativity, innovation, and entrepreneurship of young minds across 80+ universities in the state of Gujarat. May I now request Anji Sharma Madam, Principal Secretary, Higher and Technical Education, Government of Gujarat, and also Chairperson of IHUB, to deliver our welcome address. Namaskar. Shri Prakash Javadekar ji, Honorable Minister, Information and Broadcasting, Environment, Forest and Climate Change. Shri Bhupendra Singh ji Chudasama ji, Honorable Minister, Education, Government of Gujarat. Honorable MOS for Education, Madam Vibhavri Ven. Dr. Himanshu Pandya, Chief Mentor IHUB. My colleague, Shri Nagarajan, Dr. Shri Pandya, Mahanta, Dr. Ravi Gupta of ILES. Today, we are organizing the second edition of Startup Prashansha Awards to felicitate all those people who have participated in our journey of startup and innovation policy. It is my pleasure to welcome you all, sir. Especially, I would like to welcome and be thankful and express my gratitude towards Shri Prakash Javadekar ji, who accepted our invitation and encouraged us and motivated us to take up more and more and higher performance in the startup and innovation. I remember the times of Shri Prakash Javadekar ji as Honorable Union Minister of Education, and he used to constantly encourage us during our visits to the state and also during my visits to Delhi. I remember at a time, he and his secretary, Dr. Subramaniam, had told me that Gujarat does not have any institution in the NIRF category. And that time, I had promised him, sir, we are striving for it, and soon we will have one institution, at least one university in the NIRF. And sir, I am proud to inform you that this year in the NIRF 100, one of our universities, Gujarat University, has bagged a position, 60th rank in the first 100 of NIRF and overall 44th rank in the universities category. Not only this, 5 to 6 of our universities have improved their rankings a lot, and a large number of institutions have also improved their rankings. This has all been possible because of your constant support and constant guidance of our Honorable Minister, Shri Chudasama ji, and of course, our Honorable Prime Minister, Shri Modi ji, and our Honorable Chief Minister, Shri Vijay Bhai Rupani ji. Sir, innovation and startup has been a big driver for the entire education sector and the youth in the state in the last 4 years. I take this privilege to inform you that in the last 4 years, now across the length and breadth of Gujarat, all the students, all the faculty members, and people in general are very much sensitized towards the importance of innovation in education, creativity in education, and also the importance of startup in creating jobs. Now people are not only thinking of job for themselves, that is one job, but they are thinking in terms of creating jobs not only for themselves, but also for others. And this way leading to a system whereby one person provides job for 20 to 50 others. And this way, I'm sure that Gujarat will be, or rather, a pioneer in all these efforts. And of course, we have for the last 2 consecutive years scored the Top Performers Award in the National Startup Rankings. And a large part of it
is contributed by SSIP. Sir, it is indeed our privilege to have you here in this function. I also welcome our Honorable Education Minister, Shri Chudasama Ji, and our MOS, Madam Vibhavri Veen, who constantly support us, guide us, motivate us, and encourage us into each and every endeavor. Without their support, this SSIP or any of its events would not have been possible. We have also created an institution, or rather a Section 8 company called iHub, which is at the pivot of all the startup related activities now in the state. And through this, we are constantly taking up various programs and various mentoring as well as incubation activities. And it acts as a common resource center for the institutions that are engaged into startup and innovation, and also the students themselves. I also welcome our chief mentor of iHub, Dr. Himanshu Pandya, who is also the Vice Chancellor of Gujarat University and has been doing very active, has been playing a very active role in harnessing the potential of the young students and contributing a lot towards the startup ecosystem of Gujarat through their institution, GUSEC. I would also like to welcome my team members here, Shri Nagarajan, who is Director of Education, Higher Education, Shri G.T. Pandya, who is Director of Technical Education, both of them IAS officers and very bright IAS officers. I also here would specially mention and welcome my colleague and a very important person in the entire ecosystem, Shri Ketan Mehta, who is the CEO of iHub and who does not spare any minute when he does not think of innovation and startup. And I also welcome Dr. Ravi Gupta of ILETS to extend his full support in this entire endeavor and making this event a reality. Thank you very much, all sir, and I welcome you once again. Thank you. Thank you so much, madam, for illustrating the efforts of Gujarat government under the leadership of Honorable Minister for Innovation and Entrepreneurship. हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक श्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उपस्थित हैं. सर, may I request you to address and inspire us. सन्माननीय प्रकाश जी, बहन विभावरी बहन, अंजू बहन, नागराजन, हिमांशु भाई, जीटी पंड्या, रवि गुप्ता, जुड़े हुए सभी मेहमान. वैसे प्रकाश जी, मुझे तो अवार्ड सेरेमनी के बाद ही बोलना है, लेकिन मैं आपके स्वागत के लिए 2 शब्द बोलूंगा. आप आए हमारे बीच, हमारा निमंत्रण का स्वीकार किया. आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं. और एक बात जो आपने 14-15 में यहाँ आकर बताई थी और वहाँ की मीटिंग में भी बताई थी कि आप गुजरात से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात इज अ होम प्लेस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. तो तब से लेकर आज तक हमने हायर एजुकेशन में और स्पेशली इन स्टार्टअप बहुत काम किया है. इसीलिए तो 18-19 बीच में हम फर्स्ट रैंकिंग में पूरे देश में कंटिन्यूसली फॉर 2 years वी स्टूड फर्स्ट. इस काम के लिए गुजरात सरकार ने आई हब बनाया, इनोवेशन हब, और 60-70 करोड़ की लागत से एक अच्छा सेंटर भी हम बना रहे हैं. मैं अभी से आपको इनोग्रेशन के लिए न्योता भी देता हूं. गुजरात ने तो इस काम के लिए सभी को साथ में लेकर चलना तय किया है. हमारी 77 कुल मिला के यूनिवर्सिटीज हैं,
गवर्नमेंट की है, सेल्फ फाइनेंस की है। हम सब ने एक टीम बनाकर तय किया है कि सभी यूनिवर्सिटियों में हमें SSIP इनोवेशन सेंटर बनाना है। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पूरी की पूरी टीम हर रोज, कभी कभी तो दिन में 2 वेबिनार करके, सुबह सरकारी हो, शाम को सेल्फ फाइनेंस हो, सभी यूनिवर्सिटियों में हमने SSIP सेंटर शुरू करने का एक आयोजन किया है और सफलतापूर्वक ये काम भी हम कर रहे हैं। Thank you, sir, for your appreciating words, which inspires the entire innovation and startup ecosystem always in Gujarat to go to the next target. May I now request Honorable Minister Sri Prakash Javadekar ji to digitally launch the special magazine or souvenir on student innovation and startups, which we have developed. So may I request the host to please proceed. Thank you so much, sir, for sparing your time and guiding us. May I now request our inspiration, the go-to person for the innovation ecosystem in Gujarat, Principal Higher and Technical Education, Anju Sharma Madam, to declare the awards, which Honorable Minister Sri Prakash Javadekar ji will give away to the deserving teams from Gujarat. The topmost award for Best University in State University category goes to Dr. Himanshu Pandya, Vice Chancellor of Gujarat University. I congratulate him. The Best University State University Award is actually shared by two people. The shared award goes to Dr. Naveen Sheth, Vice Chancellor of Gujarat Technological University. Congratulations, sir. The award for Best University in the Private University category goes to Professor S.S. Manoharan, Provost Director General of Pandit Deen Dayal Petroleum University, PDPU. Congratulations, sir. Now, in the next category, we have the Best Institute Awards. The Best Institute Award is shared by 5 institutions. In the first category, we have LD College of Engineering, Ahmedabad. Principal Dr. Rajul Gajjar receives the award. Congratulations, ma'am. The second award goes to Adani Institute of Infrastructure Engineering. Dr. A.V. Thomas, Principal of the college, receives the award. Congratulations, sir. In the same category, the next award goes to Government Engineering College, Valsad. Principal Dr. V.S. Purani. Congratulations, sir. The next award in this category is for Vishwakarma Government Engineering College, Chamkhela. Principal Dr. N.N. Bhutani. Congratulations, sir. And the next award goes in the same category to Dr. S.N.S.S. Gandhi Government Engineering College, Surat. Dr. V.D. Dhiman as principal. Congratulations. We have 30 more awards in different categories, but because of paucity of time, we will be declaring those awards shortly after we hear Honorable Minister Shri Javadekar ji. Sir, thanks for your presence, and now we look forward to your blessings. Thank you, sir. भूपेन भाई चुड़ासमा, राज्य मंत्री विभावरी जी,
सभी अधिकारी, मान्यवर और जिनको पुरस्कार मिला उनको बहुत बधाई पहले, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, संस्था अच्छी चलाई, संस्था में इनोवेशन का स्पिरिट जगाया, इसलिए उनको आज पुरस्कार मिले हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। दूसरी, मैं हमेशा देखता हूं इनोवेशन का, जब मैं छोटे बच्चों को देखता हूं 4 साल के, 5 साल के, वो लगातार कुछ खोजते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं। उनका खेलना भी एक खोज ही होती है और उसमें नए नए सुधार, नई नई बातें वो करते जाते हैं। मुझे कभी कभी लगता है हर बच्चा इनोवेटर होता है, लेकिन हम उसके इनोवेशन को स्कूल में मार देते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम रट रटाकर जो लिखोगे वही मार्क मिलेगा, इससे उसकी स्वयं प्रतिभा जो है वो अनेक बार दब जाती है। और उसमें मैंने देखा है कि ये जो इनोवेटिव स्पिरिट है उसको जगाना और जगाकर रखना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से मोदी सरकार आने के बाद अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में शुरू हुए। 6ठी से 12वीं तक के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग और ऐसे आधुनिक औजारों से और आधुनिक तकनीक के से काम करने लगते हैं। हमें एक बात सीखने को, यानी एट माय एज और भूपेंद्र भाई एज, हमें मोबाइल का 10% भी नहीं आता। फोन लेना और फोन करना, SMS पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप करना, इससे बाहर हमारी गाड़ी नहीं जाती। लेकिन अपने घर में ही बच्चे हैं या उनके भी बच्चे अगर है, तो वो पोते जो है वो सबसे ज्यादा तेज होते हैं इस सभी मामलों में। वो ढूंढते रहते हैं और इसीलिए यह अटल टिंकरिंग लैब एक बहुत सफल प्रयोग रहा। और अटल टिंकरिंग लैब की ओलंपियाड होती है, वो ओलंपियाड में अनेक नए आइडियाज लेकर छात्र आते हैं। ये इनोवेशन की शुरुआत है। एक आइडिया आना कि जो आज नहीं है वो मैंने ढूंढा है और उसके आइडिया ये है, ये बताना ही और स्कूल के दिनों में बताना ही इनोवेशन की शुरुआत है। उसके बाद कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी वही चलता था, रट्टा पद्धति से। लेकिन मोदी सरकार ने वो भी बदल दिया और हमने, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हमने हैकेथॉन शुरू किया। और हैकेथॉन के अब 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, और 5 साल में 40,000 छात्र पहले भाग लेते थे। और उसकी कल्पना साफ है, 6 छात्रों का एक समूह होगा, उनको उस विषय के कोई प्राध्यापक है तो वो, और एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी IT के कोई प्राध्यापक है वो मार्गदर्शन करेंगे। उनको देश के जिन सवालों का डिजिटल सॉल्यूशन की जरूरत है, वो डिजिटल सॉल्यूशन लाने का प्रयास, उसके सारी समस्याएं लिखते हैं 100, 200, 300 कि इस समस्या का जवाब चाहिए।
छात्र चुनते हैं विषय, महीना 2 महीने काम करते हैं उस पर, पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उससे एक उनकी आइडिया आती है कि भाई ये आइडिया से ये प्रॉब्लम का हल हो सकता है। फिर उसका कोड तैयार करते हैं। वो कोडिंग का एक फाइनल राउंड होता है। 36 घंटे कंटिन्यूअस बैठते हैं लोग, और 36 घंटे में काम करके वो कोडिंग तैयार करते हैं। ये दूसरी स्टेज है। उसके बाद एक अटल इनोवेशन सेंटर की योजना बनी, और इनोवेशन सेंटर्स में आप भी निकालने वाले हो इंक्यूबेशन सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है इनोवेशन सेंटर। इनोवेशन की बारी आती है और उसमें उसको आइडिया को आगे लेकर उसके बहुत सारे प्रोटोटाइप्स तैयार करना, उसका प्रत्यक्ष प्रयोग करना, क्या दिक्कतें आती है वो सॉल्व करना, और एक परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार करना, ये होता है इनोवेशन का एक फाइनल तीसरा रूप। उसके आगे एक रूप होता है, चौथा स्टेज आता है उसका इंक्यूबेशन। क्योंकि बुद्धि तो सबको होती है, गरीब को भी होती है, अमीर को भी होती है। तो गरीब अगर कुछ ढूंढे तो उसको जो खर्चा इनोवेशन का इंस्ट्रूमेंट तैयार करने का है वो कौन देगा? तो अभी हम सभी आईआईटीज में और बाकी जगह इंक्यूबेशन सेंटर शुरू कर रहे हैं, एनआईटीज में भी, और वहां ये बच्चे अपना प्रोडक्ट को आगे डेवलप करके कमर्शियली फिजिबल है कि नहीं ये देखने में जुट जाते हैं। और उसमें जो प्रयोग करते हैं उनको विभिन्न कंपनियां भी सहायता करती है, और करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट हो गया, और मुझे खुशी है कि पिछले 4 साल के एफर्ट में लगभग 60-70 सॉल्यूशंस ऐसे आए कि जिसका उपयोग शुरू भी हो गया, और एक उपजाऊ, एक अच्छी टिकाऊ वस्तु तैयार करना ये एक नया बात है। तो ये नए प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करना ये भी महत्वपूर्ण है। तो मूल मन में कल्पना आना, प्रयोग करना, खेलते रहना उस आइडिया के साथ, उससे आइडिया को पक्व करना, आइडिया अच्छी होने के बाद उसके पर मेहनत करके उसका कोडिंग और उसका बाकी प्रोसेस करना, उसके बाद उसका प्रोटोटाइप तैयार करना, उसके प्रोडक्ट को ढंग से देखना और ढंग से प्रोडक्ट करने की, उत्पादन करने की क्षमता पे लाना, और इंडस्ट्रियल कंपटीशन में वो चलेगा कि नहीं ये देखना, ये जरूरी है। मुझे एक यंग युवा शोधक मिला, उसने मुझे दिखाया कि उसने 5D प्रिंटिंग शुरू किया है। 3D प्रिंटिंग तो हमें मालूम है, लेकिन 5D प्रिंटिंग तो उसने मुझे दिखाया, और उसके साथ साथ एक पुस्तक दिया, किताब 63 रिजेक्शंस, कि वो अपना शोध लेकर विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, उद्योगों में गया, लेकिन उसको रिस्पांस नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, और वो विदेशों में गया। तो वहां 15 यूनिवर्सिटीज ने और 16 उद्योगों ने उसके साथ टाइप किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, गुणग्राहकता समाज को, उद्योगों को नए इनोवेशन का स्वागत करते हुए उसका टेस्ट के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए। मुझे लगता है यही उनका रिसर्च का खर्चा है। हर चीज वो खुद ढूंढे ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे याद है टेल्को, टाटा मोटर्स में या बाकी सभी उद्योगों में, बहुत सारे उद्योगों में ऐसी पद्धति है कि जो काम करता है वो मजदूर के पास मन में कोई सुझाव आता है, मजदूर के मन में कोई इनोवेशन आता है, जिससे श्रम की बचत होगी, जिसमें समय की बचत होगी, जिसमें पैसे की बचत होगी। ऐसा कुछ न कुछ उपाय उसके मन में आता है, वो उपाय वो लिखकर बताता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। जैसे आज आपने प्रशंसा अवार्ड दिया है,
वैसे प्रशंसा अवार्ड उनको कल कारखाने देते हैं, उनको कैश रिवॉर्ड भी देते हैं। और यही सही तरीका है, क्योंकि ये कोई एक विशेष जमात नहीं है शोध करने वाले। शोध करने वाला हर एक कोई नागरिक होता है जो अपने अपने काम के क्षेत्र में कैसे आसानी से काम किया जा सकता है और कैसे अच्छा ज्यादा काम किया जा सकता है, कैसे कम खर्चे में काम किया जा सकता है और कैसे समय बचा सकते हैं, ये सब ढूंढते हैं। यही तो इनोवेशन है। एक कंप्लीट नई चीज भी निर्माण होती है इनोवेशन में। और इसलिए हम ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, मैंने केवल भूपेंद्र भाई का मुझे ईमेल आया था, मैंने तुरंत हाँ कहा, क्योंकि मुझे इन कार्यक्रमों से बहुत लगाव है। और अब मेरा आखिरी मुद्दा है कि हमें आईपीआर के मालिक बनना चाहिए। हमारे शोधक बहुत विभिन्न टीमों में होते हैं जो शोध करती है, लेकिन जो प्रोडक्ट या शोध तैयार होता है उस पर मालिकी का नाम दूसरे का होता है, दूसरे देशों का होता है। उसके बजाय हमें ये शोध का कल्चर देश में ही डेवलप करना है। जो शोध कर सकते हैं ऐसे बच्चे यही रखना चाहिए। ब्रेन ड्रेन के जगह ब्रेन गेन की बात करना चाहिए। और उसके साथ साथ उन छात्रों को सारी मदद देके वो मालिक बने अपने प्रोडक्ट के, आईपीआर के। और ये होना चाहिए, तब जाके अपना देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिना इनोवेशन तरक्की नहीं। आखिर दुनिया में कॉम्पिटिटिव कैसे होते हैं? एक नई चीज ही आपने लाई। जिसने भी पहला मोबाइल फोन तैयार किया तो उसको क्या कल्पना की इतना आगे जाएगा? जिसने पहला फोन तैयार किया, बेल करके साइंटिस्ट था, ग्रैहम बेल, तो उसने वो गया अमेरिका के अध्यक्ष के पास और उसने दिखाया कि मैंने कैसा टेलीफोन किया है, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। तो बोली ये अच्छा है। अध्यक्ष जी ने कहा कि अच्छा है, लेकिन बोलने के लिए पैसा कौन देगा? 100 साल पहले ये स्थिति और सवाल सही था कि बोलने के लिए कौन पैसा देगा। लेकिन हम देख रहे हैं आज देश में 120 करोड़ मोबाइल फोन है, कंटिन्यूअस बिजी रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं और बोलने के पैसे भी देते हैं। तो ये जो है, ये शोध होता है और ऐसे शोध भी नए आते हैं, उसी से तरक्की होती है, उसी से देश आगे बढ़ता है। क्योंकि देश को उसका आईपीआर मिलता है, तब उसका प्रोडक्शन का अधिकार मिलता है और दुनिया में उसका माल की खपत होती है। वही हमें जाना है। मोदी जी ने जो दिशा दिखाई है वो इसी तरह से है और इसको हमें आगे ले जाना है। गुजरात ने वैसा ही शुरू किया, हैकाथॉन भी 4 साल हुए। तो आप सबको, ये जो टीम आपकी बनी है, और गुजरात की एक विशेषता है, पार्टियों हो या सरकार हो, सारे ब्यूरोक्रेट्स और लोग, मंत्री सब मिलके एक टीम के जैसा काम करते हैं और इसीलिए गुजरात का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और सबको जिनको पुरस्कार मिला, प्रशंसा अवार्ड मिला, उनको भी बधाई देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। थैंक यू सर। आप नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप समिट 2020 के इस अवसर पे आए और उसका उद्घाटन किया और आपने जो मंत्र दिया है, इनोवेशन बिना तरक्की नहीं और आईपीआर का मालिक इंडिया को बनना है, ये सब हमारे लिए एक गोल्डन मंत्र रहेगा और हम उसमें आगे काम करेंगे और हमारी टीम हमेशा इसी ओर में सिलसिला में काम करता रहेगा। तो आई हैव और गुजरात गवर्नमेंट की ओर से माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब को मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर। मैं नाउ रिक्वेस्ट प्रोफेसर हिमांशु पांड्या, चीफ मेंटर आई हैव टू एड्रेस अस। परम श्रद्धेय मंत्री श्री, सम्माननीय मिनिस्टर दीदी विभावरी बहन, रिस्पेक्टेड मैडम अंजू शर्मा मैडम,
श्री एम नागराजन जी, श्री रवि जी, उपस्थित आप सब। जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज आती है, वो है रिक्वायरमेंट्स। लोग कहते हैं कि आविष्कार जो है वो इसलिए पैदा होता है क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है। मुझे लगता है हमारे भारतीय समाज में इतनी सारी आवश्यकताएं हैं जिसका मूलतः कनेक्शन सीधा जनता से है। जनता जो चाहती है उसके ऊपर अगर बच्चे काम करना शुरू करें, आज के युवा उन चीजों में अपना योगदान दे, तो एक ऐसी महासत्ता बन के हम निकलेंगे कि हम पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। iHub का ये एक नॉवेल एटीट्यूड, जिसमें हर बच्चे के हाथ में हम ये देना चाहते हैं कि आप एम्पावर्ड हो, आप में जो प्रतिभा है उसकी हम कदर करते हैं और आपको वैश्विक फलक पे ले जाने के लिए हम तत्पर हैं। और ये एहसास पिछले 6 महीनों में 20,000 से ज्यादा बच्चों को और युवाओं को हो चुका है। इन बच्चों को तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ी टीचर्स, मेंटर्स और गाइड की जरूरत पड़ती है। हमें खुशी है 2000 से ज्यादा मेंटर्स हमारे बोर्ड पे हैं और ये सारे मेंटर्स आगे जाके ये युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे। स्टार्टअप प्रशंसा अवार्ड में आज जिन प्रतिभाओं को हमने सराहा है, हमने उनके काम को एक रिकॉग्निशन दिया है। ये राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोत्साहक और मार्गदर्शक आयाम है। हम नतमस्तक ये स्वीकार करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका अभिवादन करते हैं। ये चीजों में जब एनकरेजमेंट मिलता है तो उसको गति मिलती है। मुझे लगता है कि हमारे राज्य का हर एक युवा जो किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे तकनीकी हो या नॉन टेक्निकल हो, इसमें जो काम कर रहा है, ये प्रशंसा अवार्ड से बिल्कुल उसको एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलने वाला है। नाउ ही इज कॉन्फिडेंट, जिसको हम आश्वस्त कहते हैं कि आप काम करो, आपके पीछे पूरी सरकार और व्यवस्था लगी है आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके पास नया आइडिया है। मुझे अभी प्रकाश जी ने जो एक सेंटेंस बोला वो बहुत ही इफेक्ट कर गया। वो है खेलना भी आविष्कार ही है। मतलब जब हम बात करते हैं कि इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज बच्चे के दिल में और दिमाग में डेवलप हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक एनवायरनमेंट देने की जरूरत होती है और वो हमारे शैक्षिक संस्थानों में ये क्षमता होनी चाहिए। और नई एजुकेशन पॉलिसी में माननीय मंत्री जी हमेशा वेबिनार में कहते हैं कि आपके पास डबल स्काई की लिमिट है। नाउ विद द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस इन एकेडमिक सिस्टम, you will have all the opportunities to conquer different disciplines, inter and intradisciplinary approaches। मुझे लगता है इससे बहुत बड़ी क्षमताएं बाहर आने वाली है। मेडिकल का छात्र अगर भाषा में अपनी रिसर्च करना चाहता है तो उसको उसकी अनुमति मिलेगी। यहाँ पे जस्टिफिकेशन अनिवार्य है, पर इतना मल्टी डिसिप्लिनरी काम करोगे तब जाके आपको फार्माकोग्नोसिस समझ में आएगी जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में लिखी गई है। आज कोरोना के पैंडेमिक टाइम में हमने देखा कि बहुत सारी चिकित्सा पद्धति एक साथ आके हमने इस महामारी का बिल्कुल डट के मुकाबला किया है। तो मल्टीपल जो डिसिप्लिन की बात है ये यहाँ पे जस्टिफाई होती है। एक कोरोना की महामारी में हमारा सारा ज्ञान, हमारे सारे पुस्तक,
हमारे सारे रेफरेंसेस, पब्लिकेशंस, सारे हमारे ड्रग्स की डिजाइन, ये सब धरे के धरे रह गए। जब सब साथ में आए तो पता नहीं किस चीज से फायदा हुआ है, पर फायदा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए जब हम साथ में मिलकर एक नेटवर्क में काम करेंगे तो बिल्कुल ये इनोवेशन, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप से हम एक नए गुजरात की परिभाषा रखेंगे जो कि वर्ल्ड लीडर बनाने में भारत को बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। आज के इस दिन माननीय मंत्री जी जो हमेशा हमारी हर एक एक्टिविटीज को एक बैकबोन की तरह सपोर्ट करते आए हैं और इतना एंकरेजमेंट दिया है कि 2 साल तक लगातार राष्ट्रीय अवार्ड की श्रृंखला में गुजरात ने नंबर 1 पद हासिल किया है। ये कोई आम बात नहीं है। जब बच्चे चलना सीखते हैं, अभी स्टार्टअप एंड इनोवेशन एक्टिविटीज नई शुरू हुई, पूरे देश में ये अप्रोच बिल्कुल नया है और इसमें गुजरात ने लीड लिया है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट फ्रॉम ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर्स एंड ऑल द ऑफिसर्स एट द एजुकेशन डिपार्टमेंट। पूरे गुजरात को बधाई है इसके लिए। आप सब लगे हैं, आप सब मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए हिरणमयी को विनती करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। हमारे बीच में माननीय राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती विभावरीबेन दवे उपस्थित हैं। मैडम इतनी व्यक्तिगत तरीके से प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। आप हफ्ते में 2-3 दिनों प्रवास में रहते हैं, तब भी वहाँ से वो जुड़ते हैं और हम सबको इंस्पायर करते हैं। मैडम, हम सब ने काफी एनर्जी आपसे ड्रॉ किए हैं और मैं अनुरोध करता हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन करें। नमस्ते, बापूना चरणों में प्रणाम। और मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंजू जी, महंता जी, नागराजन जी, पंड्या जी, सबको ये जो हमारा प्रशंसा अवार्ड के लिए हमने जो टीम तैयार की है उसके लिए मैं बधाई देती हूँ। और जिनको प्रशंसा अवार्ड मिला है उन सबको भी मैं बधाई देती हूँ। हमारे जिसने मेरा भावनगर का नाम मिनिस्टर दीदी अपने जुबान पे ले लिया है, ऐसे हिमांशु जी और नवीन जी, और जिन्होंने भी ये पाया है वो सबको मैं यहाँ से बधाई देती हूँ। मैं ऐसे सोच रही थी कि जब मैं एजुकेशन में नहीं आई थी तब मेरे पास एसएसपी का कोई आइडिया नहीं था, एसआईपी का आइडिया था। एसआईपी का आइडिया था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एचआईपी का था हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन एसएसआईपी का नहीं था। लेकिन मैं सब ये जानने के बाद मेरे को यही लगा है ये भी एक एसआईपी ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ गुजरात। गुजरात का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है अपने बच्चों के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए, जिन्होंने अपने पास अपने जो एक थॉट्स हैं उनको एनकरेज किया है, उनको डेवलप करने के लिए, उनको हकीकत में लाने के लिए, उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए ये गुजरात सरकार का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो गुजरात को आने वाले दिनों में बहुत आगे ले जाने वाला है। आज जब जावड़ेकर जी ने कहा डेवलपमेंट विथ इनोवेशन, हमारा गुजरात तो वैसे डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन नरेंद्र भाई के समय से है और नरेंद्र भाई जो हमारे पास उत्तम दे के गए हैं, हमारा विजय भाई रूपाणी उसको सर्वोत्तम बनाने के लिए कार्यरत है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी उत्तम से सर्वोत्तम तक ले जाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो हमारा जो प्लान है, हमारा जो है वो भी हम गुजरात उसका ग्रोथ इंजन डेवलपमेंट में जैसे रहा है वैसे ही डेवलपमेंट विथ इनोवेशन में भी वो ग्रोथ इंजन ही रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने जब देखा बहुत से इनोवेशन देखे तो मैंने सोचा कि बच्चों में कितनी अच्छाइयाँ पड़ी हुई हैं। मैंने एक देखा, शायद वो गुजरात का नहीं है लेकिन गुजरात का एक बच्चा उसके साथ है। केरला और कर्नाटक में कॉफी का जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। वहां पे जो भी कॉफी का पाक लेते हैं, जो उनको निकालते हैं, उनको बहुत ही तकलीफ होती है क्योंकि वो कॉफी जो है वो पहाड़ों पे बनती है और उनको धूप नहीं चाहिए, तो पेड़ों के बीच ही बनती है। उसको काटने में बहुत कष्ट वैसे भी होता है और उसका जो आबोहवा रहती है, उनका जो स्ट्रक्चर रहता है, उसमें भी जो लोग काम करते हैं
उनको बहुत पेन होता है। पूरे साल में उनको ये जितना काम करते हैं उतने ज्यादा समय उनको रेस्ट भी लेना पड़ता है, उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो वहां के एक बच्चे ने उसको इजीली कैसे पिकअप करते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना कोई शारीरिक क्षमता कम उसको यूज हो, नहीं कोई पेन हो, नहीं बैक पेन हो, नहीं नी पेन हो, इससे अपने हिसाब से कर सके, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट इनोवेट किया। और वो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से वो अपनी दादी को देखता था, वो अपनी दादी को देखता था वो कितना पेन ले रही है, उसके हिसाब से उसको ये विचार आया और उसको विचार से उसने ये इनोवेट किया है। ऐसे बहुत से इनोवेशंस हमारे पास हैं। मैं जो भी पढ़ती हूँ एक के बाद एक जब भी होता है तो मैं बताती हूँ। अगली बार भी मैंने बताया था कि एक ब्लाइंड जो है उसको एक वॉलेट दिया गया है, उसमें वो पैसे कैसे कितना निकालता है, करेंसी फैक्ट करेंसी नहीं है वो भी उसमें डिटेक्ट होता है और वैल्यू भी डिटेक्ट होती है। ऐसा जो एक वॉलेट बनाया था वैसा ही हमारे यात्रा धाम में, मैं मोहनता जी को बताती हूँ, हमारे यात्रा धाम में बहुत सी जगह पे ऐसी डोनेशन पेटी रहती है, बैग रहती है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट नोट आती है, कितना आया है वो जब 15 दिन के महीने के बाद वो काउंट करते हैं तब मालूम होता है, हर रोज का नहीं मालूम होता है। तो ऐसी एक बॉक्स बनाया जाए जिसमें जो डोनेट करेंगे वो रियल नोट है, फैक्ट है, वो अपने हिसाब से फैक्ट नोट नहीं डालेगा, भगवान से वो इतनी बेईमानी नहीं करता है, लेकिन गलती से अगर फैक्ट नोट डाल दिया तो भी वो डिटेक्ट हो जाता है। आज का पूरा दिन का सुबह से अभी तक का कितना डोनेशन आया वो भी उसमें हाईलाइट होता है, हर रोज का होता है। जैसे किसी ने अंबाजी में हमारा ऐसा होता है कि कोई जाता है तो अपना गहना डाल देता है, अपनी कंगन डालता है, अपनी चेन डालता है, तो वो जो गोल्ड है वो तो डिटेक्ट करना शायद मुश्किल है, लेकिन मेटल के हिसाब से कितनी मेटल आ जाए वो भी उसमें आ जाए, ऐसा कुछ शोध हमारे बच्चों के साथ हो तो ऐसा मेरे को लगता है कि हमारी यात्रा दम में वो बहुत ही उपयोगी रहेगा और हमारे लिए वो भी बहुत उपयोगी काम की चीज रहेगी। आज प्रशंसा अवार्ड जो मिला है, वैसे में अगर आगे बताया है कि हमको हर यूनिवर्सिटी, अभी तो 23 यूनिवर्सिटी शायद इनोवेशन सेंटर शुरू किया है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सब मिला के। तो अभी तो बहुत सी यूनिवर्सिटी बाकी है और हमारा एक वीक शायद बीच में ब्रेक हो गया है महंता जी, तो वो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, हर वीक 1 या 2 इनोवेशन सेंटर तो शुरू होने चाहिए। जहाँ पे भी हमारी जरूरत है, बापू की जरूरत है, तो आप भी उसको बता सकते हैं। अंजू जी का बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें भी। तो ये जो प्रशंसा अवार्ड मिले हैं उनको ये 100 का टारगेट नहीं है महंता जी, उनके लिए जो बाकी रहता है ना, हर यूनिवर्सिटी का हम 100 गिनेंगे, उसमें जो बाकी रहेगा ना, वो जो प्रशंसा अवार्ड जिनको मिला है ना उनको वो पूरा करना है, तभी हमारा टारगेट पूरा होगा। तो ऐसा एक प्रशंसा अवार्ड जिनको मिला है उनको भी अपनी जिम्मेवारी बढ़ती है, तो उनके हिसाब से ये भी काम करना है। हमारे बापू भी बहुत इसमें इन्वॉल्व होके सभी जगह पे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तो उनके साथ जुड़ी रहती हूँ, उनका ही मार्गदर्शन हमको मिलता है। तो हम साथ मिलके, जब आप बताया गया जावड़ेकर जी ने, मैं भी उसमें सहमत हूँ, हमारी पूरी टीम एक होके काम कर रही है, इसीलिए ये रिजल्ट हमको मिलता है। सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल करने वाले हैं, हैकेथॉन में भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे शायद रहे होंगे, सबसे ज्यादा इनोवेशन में हमारी आईपीआर का भी हमको जो देते हैं सब बच्चों को, जो उसका पॉलिसी है वो भी सब जगह पे हम फर्स्ट हैं, ओनली है। तो इसमें भी हम साथ रह के करेंगे, जरूर अच्छे से रिजल्ट आएगा पूरे नेशन में। गुजरात शिक्षण विभाग इनोवेशन और स्टार्टअप में टॉप रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। अब मैं सब लोगों के लिए बताऊं कि विभावरी मैडम ने एक चुनौती दिए हैं सबके लिए, सब यूनिवर्सिटीज के लिए, कि इस साल हर एक यूनिवर्सिटी को 100 आईपीआर रजिस्ट्रेशन करना है, और उन्होंने जो कहा जिनको अवार्ड मिला उनको ज़्यादा करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये चुनौती के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इंस्पायरिंग अस। मैं अभी नागार्जुन साहब से अनुरोध करता हूँ, कमिश्नर हायर एजुकेशन, टू डिक्लेयर द स्टूडेंट स्टार्टअप प्रशंसा अवार्ड, एंड हम लोग ये अवार्ड माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी के हाथों आज उन बेस्ट इनोवेटर्स को अवार्ड देंगे, बेस्ट स्टार्टअप्स को अवार्ड देंगे
जो पिछले एक साल में अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग इनोवेशन सेंटर में, अलग अलग इंक्यूबेटर में अच्छे काम हुए हैं। 300 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे, राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनी थी, इनको सिलेक्शन किया और आज हमें उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। नागार्जुन सर, मैं रिक्वेस्ट यू टू डिक्लेयर द अर्ली स्टेज स्टूडेंट स्टार्टअप अवार्ड। थैंक यू हिरणमय। अभी नाउ आई विल बी डिक्लेयरिंग द स्टार्टअप प्रशंसा अवार्ड्स फॉर स्टार्टअप्स कैटेगरी which will be given away by the blessings of Honorable Minister Shri Bhupendra Singh Chudasama ji, Cabinet Minister for Education, Government of Gujarat. The first category we have Early Stage Student Startup Awards. The first award goes to startup named Bioplastic, Patel Bindi Jagdish Kumar. In the same early stage category, the second startup is Testomatic, Varmin Panchal. The amount of the award amount is 1 lakh rupees for both the startups, 1 lakh each. Third startup in this category of early stage is Drumil Bhavsar. Startup name is Marg Sahayak from Vishwakarma Engineering College. 1 lakh rupees is being awarded. Next, we are moving on to the growth stage student startup. Swastik Library Books Luva, Kana Pal is the founder and from Government Engineering College, Patan. 1 lakh rupees is the award. Growth stage startup, Myrestica Technologies Private Limited by Anand Vadalia from MS University, Vadodara, 1 lakh rupees. Next in this series is Communication Bulls by Mohan Padiyar from National Institute of Mass Communication and Journalism. 1 lakh rupees being awarded. Campus startups and early birds. We have Rudra Birds Private Limited by Tarun Rijwani from IIT RAM, 50,000 rupees. Next Prasansa Award goes to Riolo by Malav Shah from LD Engineering College, Ahmedabad, 50,000 rupees. In the same campus startups and early birds, we have Longshore Technologies, Amey Nayak, and from Entrepreneurship Development Institute of India, 50,000 rupees. SP Bricks and Blocks by Kishan Patel from IIT RAM, 50,000 rupees. And in the campus startups, the last one is AR Explorer by Maan Dave from Parul Institute of Technology, Engineering and Technology, Limda Vagodia, 50,000 rupees. Moving on to the next category of Women Startup Awards, we have Vatsalya Bakers Prasansa startup by Hetvi Shah from Parul University, 1 lakh rupees. The next interesting category, which will be again blessed by Honorable Minister Bhupendra Singh Chudasama ji, is the Young Innovators. We have Rakshak, Symbol of Safety by Mayur Parmar from BVP Engineering College, Rajkot, 30,000 rupees. Next in the Young Innovator, Device for Real-Time In-Situ Determination of Concrete Performance, Bhavik Atul by Gosamia from Parul Institute of Technology, 30,000 rupees. And next in the Young Innovator is Urban Apps, Jainam Mehta from Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, 30,000 rupees. Young Innovator, next concept is Self-Healing Concrete from J. Champaneria from Babria Institute of Technology, Vadodara, 30,000 rupees. These were the startups and innovators. Now we are moving on to the next category of SSIP coordinators in private university category. Again, this award is being blessed by Honorable Minister Bhupendra Singh Chudasama Sahab. The award in the SSIP coordinator university private category goes to Dr. Shantanu Chakravarti of Parul University. In the SSIP coordinator for state university is given to two faculties who are Dr. Ravi Gore from Gujarat University, SSIP coordinator from state university, and Mr. Tushar Panchal from Gujarat Technological University.
the SSIP coordinators play a very critical role, and congratulate all the winners and startups. And I warmly thank Dr. Honorable Minister Bhupendra Singh Chudasama Saab for blessing all these awards with his presence. Moving on to the next category of SSIP Coordinator Best Institute Rank, I wish to request Vivariben Dave Madam to bless the awardees with her presence today here. The award goes to Dr. Manish Thakkar for SSIP Coordinator Best Institute Rank 1 from LD College of Engineering, Ahmedabad. And also in the same rank 1 being shared by 2 winners. The other winner is Mr. Tinu Ubale from Adani Institute of Infrastructure Engineering. For SSIP Coordinator Best Institute rank 1. For rank 2, we have 1 winner, that is SSIP Coordinator Best Institute rank 2, Government Engineering College, Valsad, represented by Mr. K.L. Mokaria. SSIP Coordinator from Best Institute rank 3, shared by 2 people. First one is from Vishwakarma Engineering College, Chandkeda, Dr. Femina Patel. The next in the SSIP Coordinator Best Institute rank 3, Dr. V.D. Diman from Dr. S&SS Gandhi Engineering, Government Engineering College, Surat. All these awards for best coordinators have been supported by, blessed by Honorable Minister of State Vivariben Dave ma'am. Next, we are moving on to faculty mentors, which is again will be blessed by Honorable Minister of State Vivariben madam. First faculty mentor is Karan Saragara from Gujarat Technological University. The next in the faculty mentor, Dr. Satyaranjan Acharya from Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad. And Dr. Asha Mehul Kumar Patel from Parul Institute of Pharmacy, Parul University, Vadodara, for Faculty Mentor Award. Now I would request Honorable Principal Secretary Higher and Technical Education Anju Sharma Madam to bless the awardees. Under her, we would like to award Dr. Santosh Gopal Krishna as good best faculty mentor from Babaria Institute of Technology. Next in the faculty mentors, we have Dr. Rakesh Patel from Parul Institute of Pharmacy. From Government Polytechnic Ahmedabad. Next in line is Sankana Mehta. Next is Dr. Hiralen Dave from Parul Institute of Pharmacy. Thank you, Anju Sharma Madam, for your kind blessings. Now I request Chief Mentor of IHub, Professor Himanshu Pandya, to bless the faculties and faculty mentors with these awards. In the faculty mentor category, Mr. Naveen Gerson from Vishwakarma Government Engineering College, China. Next, we have Mr. Professor Soni Nayan Kumar Praveen Chandra from Shantilal Shah Engineering College. And in the last final awardee on the faculty mentor category is Dr. Hitesh Panchal from Government Engineering College, Patan. The award being given away by Professor Himanshu Pandya, Chief Mentor. I congratulate all the winners on behalf of IHub and Government of Gujarat for having done excellent work, and we look forward to have more impactful work from you all. Thank you so much.
Thank you so much, Nagarajan sir, for declaring the awards. Thank you so much, Honorable Minister Chudasama Saab, Madam Dr. Pandya, Anju Madam, for giving away the awards. And this time, now every time the awards is raising more expectation, more and more university participating. और जो हमारे मंत्री जी ने बताए हैं कि अगले साल तो हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कॉलेज इसके लिए कंपटीशन करेंगे, तो ये अपेक्षा के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी अनुरोध करता हूं हमारे सबकी मार्गदर्शक और इंस्पिरेशन उपेंद्र सिंह चुडासमा जी, प्लीज काइंडली एड्रेस अस। वैसे मैंने प्रकाश जी की हाजिरी में ही उनका धन्यवाद किया और दोबारा फिर से हम सबका हौसला बढ़े इसीलिए मैं प्रकाश जी की बात करता हूं कि हमारी जो टीम वर्क है, देखिए साथ में बैठना, साथ में चलना, साथ में रहना और साथ में काम करना, ये संगठन का मूल मंत्र है। ये संगठन शास्त्र में भी हमें सिखाया गया है और नरेंद्र भाई मोदी ने हमें अपने व्यवहार से सिखाया है। तो ये काम हम सब मिलकर कर रहे हैं, ऊपर के लोग देख रहे हैं। आज ऐसा लगा हमें कि हमारा काम जो है ऊपर के लोग देख रहे हैं। खुश भी होना है और सतर्क भी रहना है। आज खुश हुए हैं, लेकिन अगले समय में और तेजी से और चौकन्ना होके आगे बढ़ना है कि कोई हमें देख रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है, अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूं आप सबके सहकार से, टीम वर्क से। जिनको जिनको ये प्रशंसा अवार्ड मिला है उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सोच रहा था जब मेरे हाथ से, बहन सभी के हाथों से जो प्रशंसा अवार्ड जिनको मिले हैं, प्रकाश जी ने उस बात का भी जिक्र किया कि हमारे जमाने में, हमारे समय में भी हमारे मन में भी कुछ न कुछ नया था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जब इस प्लेटफॉर्म का हम महत्व समझते हैं, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से व्यक्ति विकास ही नहीं होता है, राज्य का भी और देश का भी। सबको साथ में लगना है और ये प्लेटफॉर्म तैयार करना है। और एक बात जो प्रकाश जी ने बताई कि हर एक क्षेत्र में काम करने वाला, हर एक क्षेत्र में अपने क्षेत्र में वो अनुभवी होता है, चाहे वो मजदूर क्यों न हो, खेत में करने वाला हो, कल कारखाने में करने वाला हो, रोड पे मजदूरी करने वाला हो, उनके पास जरूर खुद के काम के विकास के लिए कोई न कोई नया आइडिया होगा ही। हमें उस नए आइडिया को बाहर लाना है। मैंने कल भी बोला था चांगा में कि इनोवेशन के लिए पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ाई करो तो जल्दी से होता है, लेकिन ये बात गलत है कि सिर्फ पढ़ा लिखा ही इनोवेशन कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग कर सकते हैं।
ये सभी लोग अपने नए विचार को बाहर ला सकते हैं। ये किसी को मालूम ही नहीं था, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं था, कोई प्रशंसा अवार्ड देने वाला नहीं था। Nobody to recognize anybody's work। मैं मन ही मन सोच रहा था कि देश को नरेंद्र भाई का आभार सामूहिक रूप से मानना चाहिए। वैसे 19 में तो मान ही लिया, पूरे देश ने मान लिया कि ये आदमी कुछ नया कर रहा है। देखिए, हम एजुकेशन फील्ड में है, इसीलिए हमें इस बात को हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सभी नीचे लेवल तक ये बात पहुंचानी है, क्योंकि नीचे से ऊपर आते हैं। मैंने कल ही बताया था, वो भरूच का कक्षा 8 में पढ़ने वाला, कक्षा 8 में पढ़ने वाला। देखिए, जब हम कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ जी का एपिसोड देख रहे हैं और जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो होता है कि कितने कठिन क्वेश्चंस होते हैं। वो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला मेरा बच्चा, मेरा विद्यार्थी, मतलब ये हुआ कि हर एक बच्चे में ये प्रतिभा है। इस प्रतिभा को हमें प्रशंसा करनी चाहिए, इस प्रतिभा को। तो मैं एक नया सुझाव आज आप सबको देता हूं कि अगले समय में सभी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक बार ऐसे वेबिनार में लाना है। अगले समय में जब भी हम सबको अनुकूल हो और ये सब नीचे से ऊपर आता है, उनके दिमाग में ये बात रखनी है कि आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है। कोई वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, डॉक्टर, एडवोकेट, पॉलिटिकल मैन बनता है, इसके सहारे बनता है, समय के सहारे, शिक्षक के सहारे, समाज के सहारे। वी हैव टू प्रोवाइड। आजकल मेरा अनुभव है कि जो प्रिंसिपल, जो टीचर ये ध्यान रखता है कि ये बच्चा भविष्य में कुछ करेगा, तो वहीं से निकलता भी है। मगर मेरे आंख और कान खुले रखने के बाद ही ये मालूम पड़ता है कि हमें ऐसी प्रतिभा मिलती है और इस प्रतिभा को हमें उजागर करना है। प्रकाश जी ने बताया कि एक मजदूर में भी है प्रतिभा, कि उसमें नया विचार से समय बचत, आर्थिक बचत, नए सुझाव से अनुकूलता, ये सब हम सब मिलकर के आज एक संकल्प करें और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ये विचार को नीचे तक हम ले जाएं। हम तो अनुभवी हो गए हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा अनुभव किसी को है तो गुजरात को है। तो ये परकोलेट हो। अभी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी वाला तो यही सोचते हैं कि ये कॉलेज का काम है, ये यूनिवर्सिटी का काम है, हमारा काम ही नहीं है। वो करते हैं फिर भी मालूम नहीं है, वो करते हैं फिर भी मालूम नहीं है। दे ऑर्गेनाइज साइंस फेयर, डू यस। तो ये साइंस फेयर में से निकलने वाली बात है। कल पंकज जोशी ने बताया था ना कि मैं चांगा गया था,
तो हमारे टीचर में भी सिखाने का इनोवेटिव आइडिया है, सिखाने का। दिस इज टू बी अप्रिशिएटेड। मुझे लगता है कि आज हम इस काम में सफल हुए हैं, ज्यादा सफल हुए। जिनको जिनको भी आज प्रशंसा मिली है, प्रशंसा अवार्ड मिला है, मैं उन सबको भी अनुरोध करता हूं कि एक काम के लिए आपको सफलता मिली है, प्रशंसा अवार्ड मिला है, और भी आगे बढ़िए। आपको और भी सफलता मिलेगी, हम आपकी और भी प्रशंसा करेंगे, और आपकी प्रशंसा सबको दिखाइए कि गुजरात ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात and central minister have recognized we people, we are appreciated by government, तो दूसरों को काम करने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग वर्ड्स और मार्गदर्शन के लिए। मैं अनुरोध करता हूँ श्री GT पांड्या, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, गुजरात नॉलेज सोसाइटी, जो स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, उनकी हेड हैं, उनको अनुरोध करता हूँ टू ऑफर वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Edmund. Good morning to all. It is really a proud moment for all of us to have such wonderful event, National Student Startup Meet 2020. The auspicious presence of all the dignitaries had made this occasion even more graceful. We are thankful to all dignitaries, invitees, and students for sparing your valuable time for this event. It is our great pleasure to have with us today as chief guest of event Sri Prakash Javadekar sir, Honorable Minister, Information and Broadcasting, Environment, Forest and Climate Change, Heavy Industries and Public Enterprise, Government of India. Your continuous support and motivation towards the innovation and startup have always led us to achieve our goal. Thank you very much, sir, for your motivating word and auspicious presence today. We are thankful to our leader, mentor and guest of honor, Sri Bhupendra Singh Chudasama sir, Honorable Education Minister, Gujarat State, for gracing the occasion and valuable words of blessing. Thank you very much, sir. We would like to thank our guest of honor, Srimati Vibhavariben Dave Madam, Women and Child Welfare, Education, Primary, Higher and Pilgrims, Government of Gujarat, for her motivating and inspiring speech of startup and innovation. Thank you very much, Madam. Respected Anju Sharma Madam, Principal Secretary, Education Department, has always taken a lead in the area of startup and innovation. In fact, this event has been possible due to her visionary guidance. We will very much thankful to you, Madam. Chief Mentor at iHub and Vice Chancellor of Gujarat University, Sri Himanshu Pandya sir, has contributed with his full capacity at iHub for the startup and innovation. We are very thankful to you, sir. Sri Nagarajan sir, Director of Higher Education, has provided his full support to iHub team and play a crucial role in the growth of startup ecosystem. We are thankful to you, sir, for your involvement and wonderful words today. The Hiranmay, CEO of iHub, and his team are putting their best effort for the development and growth of the student startup and innovation in the state of Gujarat. We are proud to have an iHub team working in a complete synchronization and wish them all the best in the future. At last, I also congratulate all the jury members. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. We also have Ravi Gupta ji on behalf of ILITS. You wanted to also offer a more token of appreciation to all. Ravi Gupta ji. नमस्कार, मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में ऑनरेबल मिनिस्टर and honorable secretary and all the officers of the government, I wish to thank for all great initiative, and I'm also thankful for the launch of the special issue of the magazine Digital Learning, which will be, I think, a great step in the direction of promotion of the startups and startup policy in Gujarat. And with this, I will close my remarks. Thank you. Thank you so much, sir, for being a very good partner and helping us. Himangini and the entire team has been quite useful for this program. In the interest of the audience,
The next session will be started at 12 o'clock. The session will be plenary of inspiring leadership. Honorable Ministers Education of 4 states will be joining with us. Also our ministers, Madam Manju Sharma will host the session. Very inspiring session. Please stay tuned. I thank all of you for joining the inaugural